ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہوری کڑیوں کے لیے ایک اہم خبر ہے۔ ہاتھوں کی خیر منانی ہے تو انسٹنٹ کون مہندی سے دور رہیں۔ انسٹنٹ کون مہندی خواتین کی سکن جلانے لگی۔ انسٹنٹ کون مہندی میں خطرناک کیمیکل ڈالے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ وفا لاہور چیمبر نے اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کو اس حوالے سے خبردار کر دیا ہے اور کون میں خطرناک کیمیکلز خواتین کے بازو ہاتھ کو جلا رہی ہیں۔ کون مہندی سے خواتین جلدی امراض کا شکار ہو رہی ہیں۔ خط میں یہ بھی لکھا گیا ہے تو خبردار کر دیا گیا ہے لاہوری کڑیوں کو ہاتھوں کی خیر منانی ہوگی کیونکہ انسٹنٹ مہندی ہے جو کہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ انسٹنٹ کون مہندی خواتین کی سکن جلانے لگی۔ انسٹنٹ کون مہندی میں خطرناک کیمیکل ڈالے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ وفا لاہور چیمبر نے اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کو اس حوالے سے خبردار کر دیا۔ کون میں خطرناک کیمیکلز خواتین کے بازو اور ہاتھ جلا رہی ہیں۔ کون مہندی سے خواتین جلدی امراض کا شکار ہو رہی ہیں، یہ خط میں لکھا گیا ہے۔ لاہوری جو کڑیاں ہیں ان کے لیے اہم خبر ہے، اب ہوشیار ہو جائیں۔ ہاتھوں کی اگر خیر منانی ہے تو انسٹنٹ کون مہندی سے دور رہیں۔ انسٹنٹ کون مہندی خواتین کی سکن جلانے لگی ہے۔ انسٹنٹ کون مہندی میں خطرناک کیمیکل ڈالے جانے کا انکشاف ہوا۔ وفا لاہور چیمبر نے اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کو خبردار کر دیا۔ کون میں خطرناک کیمیکلز خواتین کے بازو اور ہاتھ جلا رہی ہیں۔ کون مہندی سے خواتین جلدی امراض کا شکار بھی ہو رہی ہیں۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وفا لاہور چیمبر نے اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کو اس حوالے سے خبردار کرتے ہوئے خط لکھا ہے جس کا متن یہ ہے کہ کون میں خطرناک کیمیکلز موجود ہیں جو کہ خواتین کے بازو اور ہاتھ کو جلا رہی ہیں۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ خواتین ہیں جو کہ جلدی امراض کا بھی شکار ہو رہی ہیں تو کون مہندی جو کہ انسٹنٹ ہے اسے ہوشیار رہنا ہوگا۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد خان عبدالی۔ شہزاد خان عبدالی بتائے گا کیا یہ سراغ لگایا جا سکا ہے یہ اتنی خطرناک کون مہندی کون بناتا ہے، کیا کیمیکلز ہیں جو کہ اس میں ڈلتے ہیں، جو شاپ کیپر اسے بیچ رہے ہیں ان کے علم میں یہ بات ہے یا نہیں، کسی ادارے کا اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی موجود ہے؟ جی بالکل، لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کو ایک دلچسپ خط لکھا گیا ہے اور اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر انسٹنٹ کون مہندی موجود ہے اور سیل ہو رہی ہے یہ خواتین کی سکن کو برن کر رہی ہے، بہت بری طرح سے نقصان پہنچا رہی ہے، اس کے اندر خطرناک کیمیکلز شامل ہیں۔ پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی چیک کرے کہ یہ کون مہندی کہاں پہ مینوفیکچر ہو رہی ہیں اور اس کے اندر کیا اجزائے ترکیبی ڈالے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہم مارکیٹ کے اندر موجود ہے جہاں پہ یہ کون مہندی مختلف سپر سٹورز کے اندر سیل ہو رہی ہے۔ یہاں پہ جانتے ہیں جو شاپ کیپر ہیں ان سے، فرمائیے گا یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ کہاں مینوفیکچر ہوتی ہے اور اس کے اندر کیا چیزیں ڈالی جاتی ہیں اور کون سے ادارے اس کو بنا رہے ہیں؟ نہیں سر، اس کے متعلق تو ہمیں مطلب اتنا کنفرم نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہمارے پاس آتے ہیں سیلز مین، آتے ہیں ڈسٹریبیوشن کے ریفرنس سے، تو وہ تو ہمیں آ کے یہی مطلب آگاہ کرتے ہیں کہ جناب یہ بہت اچھی چیز ہے اور اس کا اچھی رنگت آئے گی اور مطلب سائڈ افیکٹڈ نہیں ہے، تو ہم نے تو اسی بہاف پہ ظاہر سی بات ہے اپنی اس جو ہے نا مارکیٹ میں یہ جو سیل کر رہے ہیں۔ اور آپ کے علم میں یہ نہیں ہے کہ یہ کہاں بن رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں، تو اس کے اندر کیا اجزائے ترکیبی ہیں؟ ہاں جی اس کے بارے میں ہمیں خود بھی مطلب جو ہے نا نالج نہیں ہے۔ اب جیسا کہ آپ عرض کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اپنا اتھارٹی ان لوگوں نے اس کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں، تو جیسے ہی وہ ہمیں اس چیز سے آگاہ کریں گے اور جو چیز وہ کہیں گے کہ جی یہ اپنا کمپنی ہو، یہ کون مہندی آپ نے یہ سیل کرنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم وہی چیز ہی سیل کریں گے۔ جی آپ نے یہاں پہ جو شاپ کیپر ہیں ان کے تاثرات سنے، ان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ انہیں بھی اس حوالے سے کوئی علم نہیں ہے کہ یہ کہاں مینوفیکچر ہو رہی ہیں اور اس کے اندر کون سے کیمیکلز جو ہیں وہ شامل کیے جا رہے ہیں جو خواتین کی سکن کو برن کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی اس معاملے کی تحقیقات کرے اور جس پروڈکٹ کو وہ ریکمینڈ وہ وہی پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر سیل کرے۔ ٹھیک ہے شہزاد، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اہم خبر ہے لاہوری کڑیوں کے لیے، اور اب اگر ہاتھوں کی خیر منانی ہے تو انسٹنٹ کون مہندی سے دور رہیں۔ خواتین کی سکن جلانے لگی ہے یہ مہندی، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس سے دور رہیں، خطرناک کیمیکل ڈالے جانے کا اس میں انکشاف ہوا ہے۔ خواتین کو بارہا تنبیہ کی جا رہی ہے۔ وفا لاہور چیمبر نے اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کو خبردار کر دیا ہے۔ کون میں خطرناک کیمیکلز خواتین کے بازو ہاتھ جلا رہی ہیں، کون مہندی سے خواتین جلدی امراض کا شکار بھی ہو رہی ہیں۔
नासिर खान शहरी हैं जो कि इंस्टेंट कोन मेहंदी के हवाले से क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये ऐसा है कि जी कोई भी चीज़ आप जब भी किसी इंसानी बॉडी पे अप्लाई करते हैं उसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत होती है। ये नया जो मेहंदी का जो आ रहा है मार्केट में जो सेल हो रही है, इस पर मैन्युफैक्चर का नाम ही नहीं लिखा हुआ। चले वो भी एक हद तक काबिल बर्दाश्त था, लेकिन उसके इफेक्ट से जो लेडीज़ यूज़ कर रही हैं उनकी स्किन जल जाती है। यानी कि इसमें कोई ऐसा केमिकल यूज़ किया जा रहा है कि जो इंसान के जिस्म के बर्दाश्त से के लिए नुकसानदायक है। तो सीधी सी बात है, मैं तो ताजरों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये बेच रहे हैं बराए मेहरबानी बगैर मैन्युफैक्चरिंग के नाम की कोई चीज़ बेचे ना, ये गैर कानूनी है। दूसरा, मैं गवर्नमेंट से भी कहना चाहूँगा कि ऐसी जो चीज़ है जो कि इंसान को नुकसान पहुँचा रही है, इसको फौरी तौर पर मार्केट से इसको ख़त्म किया जाए और सिर्फ उन प्रोडक्ट बेचने की इजाज़त दी जाए जो कि इंसानी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो ताजरों से भी रिक्वेस्ट है कि ताजर जो है खरीदते वक्त ज़रूर देखें कि इसको बनाने वाला कौन है, क्योंकि जहाँ तक हमें कंप्लेंट्स आई हैं उसमें हमें जो भी सैंपल्स दिखाए गए उनमें मैन्युफैक्चर का नाम ही नहीं लिखा हुआ। तो इस पे ज़रूर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मौक़िफ़ आपने सुना। शादियों का सीज़न है तो अब आपको भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ना, मैं तो एहतियात करूंगी क्योंकि शादी सीज़न है और मैं भी मेहंदी लगवाने का सोच रही थी। सेनेट इलेक्शन की बात करेंगे। सेनेट इलेक्शन से कबल फंड्स के बंदरबांट, हुकूमत ने मतलूबा नताइज के हवाले से खजाने के मुंह खोल दिए हैं। पंजाब के अरकान को 10 अरब रुपए थमा दिए गए। आपको बताते चलें कि पंजाब में हुकूमती अरकान असम्बली इत्तेहादियों को 10 अरब मिल गए। महकमा खजाना ने फंड्स के इजरा की तस्दीक भी कर दी। लाहौर में 2.5 अरब रुपए बांटे गए। चंद रोज़ में अरकान के लिए 5 अरब मजीद जारी होंगे। ज़राए की जानिब से बताया गया है सेनेट इलेक्शन से कबल फंड्स की बंदर बांट का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने मतलूबा नताइज के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। इसी हवाले से जानते हैं अली रामे से। अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेनेट इंतखाबात से कबल हुकूमत पंजाब ने न सिर्फ हुकूमती बल्कि इत्तेहादी अरकान असम्बली को खुश करने के लिए फंड की बंदरबाट जो है वो की जा रही है। अब इसके लिए हुकूमत पंजाब ने 10 अरब रुपए तक का बजट जो है वो फंड हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली के हल्कों में तरक्याती मनसूबाजात की तकमील के लिए जारी कर दिया है। और ये फंड कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से इन हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली को दिया गया ताकि उनके हल्कों में जो जारी तरक्याती मनसूबाजात वो फौरी तौर पर मुकम्मल किए जाएँ, क्योंकि आए रोज़ इन्हीं इत्तेहादी और हुकूमती अरकान असम्बली की तरफ से न सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि वज़ीर आला पंजाब से भी गिले और शिकवे किए गए कि उनको फ़ंड नहीं दिए जा रहे, जिस पर हुकूमत पंजाब ने फौरी तौर पर नोटिस लिया और महकमा खजाना पंजाब को हदायत की कि ये फ़ंड फौरी तौर पर जारी होने चाहिए। और ये सिर्फ अंदाज़ा लगा लें कि रवा माली साल के पहले निसफ 6 माह में ही 80% तक बजट जो है वो हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली को मिल चुका है। और इस पर महकमा खजाना पंजाब ने बाकायदा तस्दीक की है कि 10 अरब रुपए तक का बजट जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली के हल्कों में तरक्याती मनसूबाजात के लिए। और ये कम्यूनिटी डेवलपमेंट के नाम से ये फंड आप हमें डिटेल्स बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। जराइम की बात करेंगे। सूरत हाल ये है कि लाहौर में रोज करोड़ों के डाके पड़ने लगे हैं। शहरी गैर महफूज है। डाकों ने शहरी से 1 करोड़ 90 लाख रुपए लूट लिए और मतीउल्लाह भाई के साथ रकम लेकर हॉल रोड से बेगमपुरा जा रहा था जब ये वाकया पेश आया। गढ़ी शाहू पुल पर नामालूम मुलजिमान ने गन पॉइंट पर यह वारदात की है। आए रोज वारदातों में इजाफा हो रहा है। करोड़ों के डाके पड़ने लगे हैं। पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। दिन की सबसे बड़ी डकैती हुई है। गढ़ी शाहू में 1 करोड़ 90 लाख की डकैती हो गई। लाहौर में रोज करोड़ों के डाके पड़ने लगे। डाकुओं ने शहरी से 1 करोड़ 90 लाख रुपए लूट लिए। मतीउल्लाह भाई के साथ रकम लेकर हॉल रोड से बेगमपुरा जा रहा था। गढ़ी शाहू पुल पर नामालूम मुलजिमान ने गन पॉइंट पर वारदात की। फ़खर इमाम हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। फ़खर, बारहा पुलिस में तैनातियां की जाती हैं, IG बदले जाते हैं, आए रोज इन वारदातों में इजाफा हो रहा है, पुलिस आखिर कर क्या रही है? जी बिल्कुल इसी तरह से है। जो शहर में डकैती और की जो वारदातें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही और मुतअद्दिद बार तबादले किए गए हैं, अफसरान को बदला गया है, लेकिन जो वारदातें हैं और जो जराइम हैं वो उनमें कमी नहीं आ रही। ये भी जो वारदात है ये एक मतीउल्लाह नामी शहरी से हुई है। ये जो मुतासर शहरी है ये हाल रोड पर मुख्तलिफ जो माल है वो सप्लाई करते हैं और गुज़श्ता रोज़ भी जो है ये माल सप्लाई करके वापस आ रहे थे कि जब गढ़ी शाहू पहुंचे तो 2 नामालूम मुलजिमान ने इनको रोका और उनके पास जो माल सप्लाई करने की जो रकम थी
1 करोड़ 90 लाख रुपया बताया जा रहा है ये रकम थी। इनको असले के जोर पर मुल्जिमान ने लूटा और मौके से फरार हो गए। जबकि मुतासर शहरी का ये भी कहना है कि जब 15 पर कॉल की तो 15 की जानिब से इनको फौरी रिस्पॉन्ड नहीं किया गया और काफ़ी देर बाद ये जब खुद पुलिस स्टेशन पहुंचे फिर जाके इनको रिस्पॉन्ड किया गया है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि जो वाक़े का मुकदमा जो मुतासर शहरी है उसकी मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है और मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस चेक की जा रही हैं कि मुल्जिमान कहाँ से आए थे और मुल्जिमान की जो तलाश है वो जारी रखी गई है। जबकि जो मुतासर शहरी है उसका कहना है कि मुल्जिमान को फौरी जो है गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके जो उसकी रकम है वो उसको वापस दिलवाई जाए। जी ठीक है फ़खर, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पंजाब के तालीमी बोर्ड्स में कैमरेज सिस्टम के मुताबिक नया मार्किंग सिस्टम है जो कि नाफिज किया जा रहा है। 9वीं और 11वीं जमात के तलबा के लिए कैमरेज तर्ज का मार्किंग सिस्टम है जो कि नाफिज किया जाएगा। महकमा हायर एजुकेशन ने तालीमी बोर्ड्स में ग्रेडिंग सिस्टम नाफिज करने का फैसला किया था। यूनिवर्सिटीज़ को ग्रेड के मुताबिक नई दाखिला पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत दी गई। दाखिल होने वाले तलबा के नताइज नए सिस्टम के तहत जारी होंगे। 9वीं और 11वीं जमात के रिजल्ट कार्ड्स में नंबरों का इंदराज नहीं होगा, जबकि यूनिवर्सिटीज़ को ग्रेड सिस्टम के मुताबिक मेरिट पॉलिसी तश्कील देने की हिदायत की गई है। आपको बताते चलें इस हवाले से कि पंजाब के तालीमी बोर्ड में कैम्ब्रिज सिस्टम के मुताबिक नया मार्किंग सिस्टम नाफिज कर दिया गया। तफसीलात अकमल सुमरो से जान लेते हैं। जी अकमल। जी बिल्कुल, महकमा हायर एजुकेशन ने ये इजलास इसलिए मुनक्किद किया है कि महकमे के तहत सूबे भर के तमाम तालीमी बोर्ड्स में जो ग्रेडिंग सिस्टम जिसे कैम्ब्रिज सिस्टम के मुताबिक तैयार किया गया है उसको मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दिया है। और इस हवाले से जो अब 9वीं जमात और 11वीं जमात में नए दाखिले हुए हैं, इन तलबा के जो रिज़ल्ट कार्ड जारी होंगे वो इस नए सिस्टम के तहत होंगे और नए रिज़ल्ट कार्ड्स में जो नंबरों का इंदराज है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। और इस हवाले से इस इजलास में यूनिवर्सिटियों के नुमाइंदे, बिलखसूस कंट्रोलर इम्तिहानात और कैम्ब्रिज सिस्टम के जो अफसरान हैं उनको भी मदऊ किया गया था ताकि इसको हतमी तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाए। और यूनिवर्सिटियों को ये हिदायत जारी की गई है कि इस नए ग्रेडिंग सिस्टम के मुताबिक अपनी दाखिला पॉलिसी तश्कील देंगे। और क्योंकि तलबा के रिज़ल्ट कार्ड्स पर नंबरों का इंदराज मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा और इसमें सिर्फ ग्रेड्स होंगे और ये ग्रेड्स भी रिलेटिव मार्किंग सिस्टम के तहत दिए जाएंगे। इन ग्रेड्स के मुताबिक यूनिवर्सिटियों में दाखिले किए जाएंगे और इस पर यूनिवर्सिटियों को यह वाज़े कहा गया है कि वो फौरी तौर पर इसकी हतमी पॉलिसी तश्कील दें और अपने तलबा को दाखिलों के हवाले से आगाह भी करें। और इस इजलास में ख़ास तौर पर महकमा हायर एजुकेशन के एडिशनल सेक्रेटरी तारिक हमीद भट्टी की ज़ेर सदारत इस इजलास में उन्होंने ये भी कहा कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का बुनियादी मकसद ये है कि तलबा से जो रट्टा सिस्टम का कल्चर है उसका खात्मा किया जाए और नंबरों की जो दौड़ है उसको भी ख़त्म किया जाए। और इसलिए तालीमी बोर्ड्स को अब ये वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई हैं कि 9वीं और 11वीं जमात में जो नए दाखिले हुए हैं इनके रिजल्ट्स नए सिस्टम के तहत होंगे। अब तक तो महकमे की जानिब से इस पॉलिसी को पार्शली जो है वो नाफिज किया गया था जिसमें ग्रेड्स के साथ नंबरों का भी बहुत शुक्रिया अकमल सुमरा पर अपडेट कर रहे थे। बराह रास्त लिए चलते हैं DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मौजूद है, आपने मुख्तलिफ रोड्स पे बैनर्स भी देखे होंगे, स्टैंडीज़ भी देखी होंगी, उसकी अवेयरनेस ऑलरेडी हम कर रहे हैं और हमने खुद भी मीटिंग्स की हैं, आप लोगों ने कवर भी की हैं। सो लोगों में ऑब्वियसली आगाही का अमल मौजूद है, लेकिन हमने सोशल मोबिलाइज़र इसमें स्पेशली रखे हुए हैं। तकरीबन कोई 1000 से ऊपर सोशल मोबिलाइज़र हैं जो कि ये काम करेंगे और वहाँ पर जाके ये मोबिलाइज़ करेंगे लोगों को कि ये आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, आपके बच्चों की हिफाजत के लिए हम आए हैं और आप हमारा इस पर साथ दें। जी WHO इस पे बात करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल आपने किए, मैं चाहूँगा कि मदद कर सकूँ। लेकिन दो चीज़ें, टाइफाइड आज की बीमारी नहीं, 1874 में पहला टाइफाइड का केस जो है वो हिस्ट्री के अंदर हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आई 2017 से। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। टाइफाइड के हवाले से ये एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें DC लाहौर गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब शहबाज गिल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कल की खबर है और आज सुबह चैनल
मैं समा पे भी देख रहा था, एयरवाई पे भी देख रहा, दूसरे चैनल्स पे भी, कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ने इंडिया को मात दे दी है। हमारी पिछले 13 साल में बुलंद तरीन जगह पे इस टाइम स्टॉक एक्सचेंज है। ये हमारी पिछले 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये जिस वेले तुसी कहंदे हो ना रब दी राज दियो ते अगों पता नहीं किन्ने गुणा लभदे ने। ये खान ने रब दी राह दे विच फैसला लिया सी, गरीब वास्ते फैसला लिया सी, अमीर ते सारा दूजे पासे खलोता सी, क्योंकि पहली बीमारी सी जिहड़ी अमीरां नूं भी लग जानी सी और उहदा इलाज कोई नहीं सी, और असी सारे अमीर हैं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। थानों की तकमील के हवाले से इजाफी फंड्स फराहम किए जाएंगे। लाहौर के 8 थानों समेत सूबे भर के 37 ज़ेर तामीर थानों के हवाले से IG पंजाब ने हुकूमत से 88 करोड़ से ज़ायद के फंड्स मांग लिए हैं। गुज़श्ता 3 सालों से ज़ेर तामीर थानों की तकमील के लिए महकमा खजाना से इजाफी फंड्स मांगे गए हैं। तफसीलात जानते हैं, अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा क्या डिटेल है इस हवाले से? आज बिल्कुल लाहौर समेत पंजाब भर में 37 थाने पिछले 3 सालों से ज़ेर तकमील है। लाहौर के इसमें 8 थाने हैं जिनको इस साल मुकम्मल किया जाना था, लेकिन फंड्स की अदम फराहमी के बायस ये मनसूबा जो है वो लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर IG पंजाब की जानब से हुकूमत को मरासला भिजवाया गया है कि 88 करोड़ से ज़ायद के फंड्स जो हैं वो फराहम किए जाएँ, ताकि रवां साल में लाहौर के 8 थानों समेत पंजाब भर में 37 थाने इस साल मुकम्मल करके मुतलका जो SHOs हैं उनके हवाले किए जाएँ। चूँकि तमाम थानों के करोड़ों रुपए सालाना किराए बनते हैं, चूँकि प्राइवेट बिल्डिंग्स में जब तक ये थाने मुकम्मल नहीं होते तो वहाँ पे काम जारी रखे हुए हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत जो है वो लाहौर के 8 थाने, जिसमें चौंक, गुलशन रावी, फैक्ट्री एरिया, यक्की गेट, लोहारी गेट, थाना किला गुजर सिंह समेत 8 थाने हैं जो पिछले 3 साल से ज़ेर तकमील हैं और इनकी फ़ंड्स की अदम फराहमी की वजह से अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके। अगर इस साल भी फंड्स फराहम ना किए गए तो अगले साल में चले जाएंगे और अगले साल जो नए थानों की स्कीमें शुरू की जानी है वो मज़ीद मौखर हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत जो है वो पंजाब पुलिस को 88 करोड़ से ज़ायद के फंड्स फराहम करे ताकि बर वक्त थानों की तकमील हो सके और अगले माली साल में नए थानों की। बहुत शुक्रिया अली साही। थे कि स्मोक के तदारुक के लिए महकमा माहौलियात के इकदाम 63 सनती यूनिट्स को ऑनलाइन मॉनिटर करने के लिए कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। महकमा माहौलियात की टीमें सनती यूनिट्स को मॉनिटर कर सकेंगी। शहर में 202 सनती यूनिट्स प्रोडक्शन कर रहे हैं। सनती यूनिट्स गैर मायारी ईंधन का इस्तेमाल करते थे। सनती यूनिट्स की 24 घंटे मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इसी हवाले से जानते हैं सादिया खान से। सादिया खान, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, महकमा माहौलियात ने लाहौर की आलूदगी को कंट्रोल करने के हवाले से एक अहम कदम उठाया है और ये है कि स्मोक सीज़न में जितनी भी फैक्ट्रियाँ या सनती यूनिट बंद किए गए थे उनकी टेक्नोलॉजी कन्वर्ट करवाने के बाद वहाँ पर कैमरे नस्ब करके उनकी रसाई हासिल की है। लाहौर के तकरीबन 63 सनती यूनिट ऐसे हैं जहाँ पर कैमरे महकमा माहौलियात ने लगवा कर उनकी रसाई अपने फ़ोन और लैपटॉप तक जो है वो हासिल की है। कहा यह जा रहा है कि स्मोक सीजन के दौरान ये तमाम सनती यूनिट जो थे ये बंद किए गए थे, क्योंकि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आलूदगी बढ़ने की वजह से स्मोक बढ़ी और शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना हुआ। जब ये सनती यूनिट बंद किए गए तो इनकी टेक्नोलॉजी को कन्वर्ट किया गया और उसके बाद इनको मॉनिटर करने के हवाले से वहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं। और महकमा माहौलियात का कहना यह है कि अब इनका फ्यूल के साथ साथ इनका जो बर्निंग सिस्टम है उसको भी मॉनिटर किया जाएगा। तमाम अफसरान चाहे वो दफ्तर में हों चाहे वो फील्ड में हों, वो इन कैमरों की मदद से इन तमाम सनती यूनिट के जो ईंधन का सिस्टम है या इनकी जो प्रोडक्शन का सिस्टम है वो मॉनिटर कर सकते हैं। और महकमा माहौलियात ने दीगर ऐसे यूनिट जो कि अपने कैमरे की रसाई नहीं दे रहे हैं खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए उनको सील करना शुरू। डिटेल्स बता रही थी, बहुत शुक्रिया। एलडीए में अरासी मामलात निपटाने का मामला स्टेट मैनेजमेंट और लैंड डेवलपमेंट को यकजा करने का नया तजुर्बा किया गया है। हाउसिंग डायरेक्टरेट को 2 हिस्सों में तकसीम करके 9 जोन्स बना दिए गए। तफसीलात जानते हैं, दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्रे नायाब, बताइएगा। जी, एलडीए में लैंड डायरेक्टरेट ऑफ लैंड डेवलपमेंट और डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट मैनेजमेंट को यकजा कर दिया गया और इस हवाले से गवर्निंग बॉडी ने फैसला किया गया। अब इसकी तमाम तफसीलात मंजर-ए-आम पे आ गई हैं और जो मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी हुए हैं उसमें तमाम प्रपोजल जो है वो सामने आया है। ये एक बिल्कुल नया तजर्बा होगा जिसपे स्टेट मैनेजमेंट और लैंड डेवलपमेंट के जो मामलात हैं वो एक डायरेक्टरेट के तहत चलाए जाएंगे और हाउसिंग के 2 हिस्से कर दिए जाएंगे जिसमें हाउसिंग 1 और हाउसिंग 2 होगा। अगर बात की जाए तो हाउसिंग 1 के अंदर शादमान, गुलशन रावी, टुलिंटन मार्केट, शाहजमाल, फाजलिया कॉलोनी,
इसी तरह कश्मीर रोड, एडजर्टन रोड, मोंटगोमरी रोड, गढ़ी शाहू, गुजरपुरा, बागबानपुरा, ये तमाम इलाके होंगे। जबकि अगर बात की जाए तो हाउसिंग 2 के अंदर समनाबाद, मुल्तान रोड, गुलशन रावी, इसके साथ इस्लामिया पार्क, मोहम्मद नगर, 2 मोरिया पुल, 1 मोरिया पुल, इसके साथ साथ शादरा और इस दीगर स्कीमें जो हैं वो होंगी। और इन दोनों के लिए 2 एडिशनल डीजीज़ जो हैं वो बाइख्तियार होंगे और हेड होंगे, सुपरवाइज़र होंगे इन तमाम तर मामलात को देखने के। इसके साथ साथ नीचे जी बहुत शुक्रिया दुर्नयाब। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज का बादामी बाग सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी का दौरा। मुदस्सिर रियाज मलिक ने मंडी में इंतजामात का जायजा लिया। AC कैंट जही शाकिर और SAO शाहिद महबूब भी उनके हमला मौजूद थे। तफसीलात जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने सब्जी मंडी का है प्याज की ऑक्शन करवाई है और इसके साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं उस पर भी उनको भी देखा है। आपको बताएं कि मुख्तलिफ जो यहाँ पर आड़ती थे उनकी जानिब से भी पॉइंट आउट किया गया कि जो मसाइल हैं मंडी के उनको किस तरह से एड्रेस किया जाएगा। इस पर हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक से। सर बताएंगे, हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा दौरे यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर्स भी आते हैं, ऑफिसर्स भी आते हैं, DCs भी आते हैं, माजी में भी हमने देखा, आप भी देख रहे हैं, हालत नहीं बदली मंडी की, क्या वजह है? देखिए ये 69 से मंडी है और ऑब्वियसली इसका हल तो यही है कि यहाँ से शिफ्ट किया जाए। उसके लिए प्लान जो है बन चुका है, लखों डेयरी से शिफ्ट होना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात हो चुकी है लोन की फॉर्म में और उसका प्लान इज़ कम्प्लीटेड। अब सिर्फ कोविड की वजह से क्योंकि कंसल्टेंट उसके आ नहीं सके थे यहाँ पर, उसकी वजह से ये फाइनलाइज नहीं हो सका। लेकिन अब इसको शिफ्ट करना ही हमारा असल जो प्रायोरिटी है यही होगी कि इमीडिएटली शिफ्ट किया जाए इसको। जब तक शिफ्ट नहीं होती गंद इसी तरह रहेगा, गार्बेज गटर में ड्रेन का अब उसको 100% ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें बेहतरी की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। वो आज हमने देखा है, वाकई यहाँ पर बड़े मसाइल थे और ये काबिल बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। इस पर सख्ती से हमने नोटिस भी लिया और ये यहाँ पर कार्रवाई भी की है। मैंने एक्शन का कह दिया है जो मुतलका जो अफसरान हैं उनके खिलाफ। बाकी असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर अगले 2-3 दिन यहाँ पर डेली यहाँ पर आएंगी और यहाँ पर आके इसको इंश्योर करेंगे कि ऑपरेशनल जो इशूज़ है वो रिजॉल्व हो और अल्टीमेटली हमने इसको यहाँ से शिफ्ट करना है और यहाँ के लोग भी उसको मुत्तफिक है इस चीज़ से। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू सुनी डिप्टी कमिश्नर लाहौर के, उनका ये कहना है कि चूंकि इस मंडी को शिफ्ट होना है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की कारकर्दगी का जायजा इजलास, इसका दूसरा सेशन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंजूर अहमद मलिक इजलास की सदारत कर रहे हैं। ATC में निपटाए गए मुकदमात महकमों की कारकर्दगी का जायजा, अदालतों में ज़ेरे इल्तवा और ज़ेरे समात मुकदमात के बारे में तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ जिसका दूसरा सेशन था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंजूर अहमद मलिक इजलास की सदारत कर रहे हैं। रंग महल के लासानी ब्राइडल बुटीक की लापरवाही, नई नवेली दुल्हन की खुशियों के रंग में भंग डाल दिया। सूट बनवाया मगर वक्त पर ना मिला, इमरजेंसी में महंगा खरीदना पड़ गया। सूट की मालियत 90,000 रुपए थी और 30,000 एडवांस रकम देने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। सब्जाजार के निगार अहमद के खिलाफ 4 लाख रुपए हजाने का दावा है जो कि दायर किया गया है। सारिफ अदालत से खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि ज़ेनी कोफ्त का सामना करना पड़ा है दुल्हन को, जिसे टाइम पर अपना ड्रेस नहीं मिला और बाजार से दूसरा ड्रेस खरीदना पड़ा। लासानी ब्राइडल बुटीक रंग महल के मालिक को इसी मामले पर 26 फरवरी को तलब कर लिया गया है। रंग में भंग डाल दिया गया नई नवेली दुल्हन की खुशियों के और रंग महल के लासानी ब्राइडल बुटीक की लापरवाही है जो कि सामने आई है। सूट तो बनवाया मगर वक्त पर ना मिला, इमरजेंसी में महंगा खरीदना पड़ा। सूट की मालियत 90,000 रुपए थी, एडवांस भी दिया गया दुल्हन की जानिब से, लेकिन वक्त पर ड्रेस ना मिला और दूसरा ड्रेस खरीदना पड़ा दुगनी मालियत में दुल्हन को, जिसकी जानिब से सारिफ अदालत में दावा दायर किया गया है। 30,000 एडवांस रकम देने का भी कोई फायदा नहीं। ऐसे में अगर वक्त पर ड्रेस ना मिले तो दुल्हन को यकीनन ज़ेनी कोफ्त का सामना करना पड़ता है। और इसी खबर के हवाले से ही हम आपको बता रहे थे जहां पर दुल्हन रोती धोती घर गई और दूसरा ड्रेस उसे खरीदना पड़ा। जबकि वक्त इतना एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सिटी 42 और रहिए इस शहर की हर खबर से बाखबर।